ठीक है, ये एग्जांपल में आपको समझ में आएगा अभी। तो यही, नाउ सी दिस चार्ट नंबर 56, BNN बुक खोलेंगे 56 नंबर चार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्शन इज गिवन। सो नाउ think about this chart, see the planets, and tell me what you can predict with this chart. Difficulties are only between 49-50 years of this age. ये चार्ट को एक बार देखें सही से and try to see whatever rules we have discussed till now. Is it applicable? Anything you can see in this chart? फर्स्ट राउंड ऑफ 12 इयर्स ऑफ जुपिटर में उसको आगे एनेमी प्लैनेट्स ही मिल रहे हैं। फर्स्ट जुपिटर विल मीट विद राहु, देन मार्स एनेमी तो नहीं है लेकिन फिजिकल वेलबींग के लिए ठीक नहीं होगा। देन तो फर्स्ट 2-3 इयर्स तो, और आगे जब तक वो वर्गो को क्रॉस नहीं करेगा तब तक उसको कोई फ्रेंडली प्लेनेट नहीं मिलेगा। ठीक है, और कुछ कंक्लूजन? गौतम जी आप ट्राई करें, वीरेंद्र जी, रविंद्र अग्रवाल जी आप। Sir, first 36 years tak he'll face difficulties because of Rahu and Mars. And then from 36 onwards he'll feel better. Moon maybe he'll be doing good. Then केतु के साथ जब आएंगे तब प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि फिर वहां गुरु चंडाल योग बन जाएगा केतु के साथ। Sir, I think in the 13th year, when Jupiter progresses in the second round, it will meet Rahu first. Okay. Then it will meet Mars. Then there is no planet until Moon. So I think that difficulty period will continue. See, Moon, if you see the Karak Tattva of Moon, yes, okay, so we know Karak Tattva of Moon is not that good in Nadi. Okay, so all kind of difficulty, change, losses, cheating, everything is mentioned for the Moon. Okay, so now if I see the combination of Mars, Moon, there is a one combination with Rahu. When Jupiter progresses on Rahu, so we have a combination with Rahu and Venus. Okay, when Jupiter reaches to Leo, we can see the combination of Mercury, Sun, Saturn, like this. Okay, so now see once again. So whatever you told till now, that is correct. Let's see one more time. Just take few minutes. वीनस से होके आए हैं तो जन्म के पहले जन्म के साथ ही इनके फादर को पैसे वैसे या कुछ फैमिली में वो ग्रोथ हुई होगी। ये तो 56 नंबर चार्ट है। अगर आप चाहो आप लोग अभी यू कैन ओपन बुक सबके पास है अभी? यस सर। बुक खोलिए और थोड़ा देखिए 56 नंबर चार्ट में क्या बोला जा रहा है। In the 5th round also, when Jupiter comes in Leo, he meets Moon first, and it makes a combination with Mars, Jupiter, Moon. Then again Jupiter meets Ketu. Yes. It can be a problematic time. So problematic time. As I told you, till the age of 50, 49, 50. The 49th would 51. Be in Leo, I think. And then from there. So all these years are very troublesome for this native. Yes. Okay. So before we go to any conclusion and all, you open that book, read the 56 number chart. Okay. Just take 1 minute of time. I'll be back. Something. Yes. Yeah, I do not. 3 साल खराब है। हैं? क्या बोला आपने? Yeah, so I was saying that 3 years before the birth of the native, the parents had plenty of troubles. वो मुझे 3 years का calculation. Like, does it mean कि we will take this Jupiter from 12th house and like we have Ketu in trine?
If you take Jupiter in 12th, so Jupiter 12th means we are discussing about past life. There's the one. Okay, okay, that is a different thing. Different Right, thing. right, Okay, it is not a past different life. thing. Yeah. अब इसमें ये बोल रहे हैं वो कि नेटिव के बर्थ से पहले पहले 3 साल पहले अप्रोक्सीमेटली उन्होंने बोला. So simply you can shift Jupiter 3 house back. Okay, in Aquarius. So can we say like this, like Jupiter when moves back 3 houses back. So before Aquarius there is Venus. So that is the good time. But after Venus and Jupiter there is no planet in between. And in Aquarius it is aspected by Mars and Moon. So that could be the reason the author says that before the birth of the child there was problem. Yeah, that could be a reason. That could be the reason. Jupiter, yes, that could be a reason. You know, Jupiter is in Aries in this chart. Okay, so when this Jupiter was in, it's not like 3 years. 3 years can only be possible. I think there is some mistake in this. Okay, so if I take 3 years, so it means that Jupiter either in Aquarius or in Capricorn. Okay, but as per the rule, Jupiter it should be placed in Sagittarius. Okay, then we can say it's something about the trouble and all these things we can predict. Okay, but if I take Jupiter in Aquarius, that is not possible. Yes, so that means 2 years. It means between Aquarius, that means 2 years. It means the whole point is, first thing, the degrees are not given in this chart. Okay, yes, so we are not very sure whether it's Aquarius or in Capricorn. Okay, there are two possibilities here. So broadly, we can say like 2 years can be troublesome. Let's conclude 2 years, like 3 years, we can be troublesome. But you have to understand one thing. By this chart, now you know. Okay, so if you want to predict before the birth of native, that is also possible. Okay, that is also possible. Only you have to progress Jupiter in reverse manner. Sir, can we take Rahu for that? If we take 3 years, Rahu will be in Cancer. हाँ, वो भी ले सकते हैं ना. That is correct. So Rahu will move backwards, I think. Backward. So यहाँ कैंसर में नहीं आएगा ना हर्ष मोदी जी. Rahu will be not in Cancer. तो सर वो रेट्रोग्रेड मोशन नहीं होगा? नहीं, अभी एरीज राहु सॉरी सर कैंसर ही होगा. कैंसर ही होगा, मैं समझ रहा हूँ. ठीक है सर, सारे प्लैनेट्स के पोजीशनिंग भी तो चेंज हो जाएंगे ना, इंक्लूडिंग शनि. सारे चेंज हो जाएंगे, इसीलिए हम इसे और कंक्लूड नहीं करते हैं इसको. ठीक है, मोटा मोटा वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्बिनेशंस फर्स्ट. ओके, सो इन दिस कॉम्बिनेशन सैटर्न, मर्क्यूरी एंड सन. ओके, राहु and ketu, you don't need to include Rahu Ketu for now. Okay, you can predict these things only by these planets. But yes, if you include Rahu Ketu, that is giving you clear cut picture of trouble, because ultimately all things are connected with Rahu Ketu and Saturn. So what Harsh Modi ji is saying, that is technically correct. And if we're talking about before birth, ओके, सो राहु रेट्रोग्रेड मूव करेगा तो ऑब्वियसली वो कैंसर से ही तो वहां पहुंचेगा ना. अभी बर्थ के बाद वो एरीज में जाएगा, उसमें जाएगा पाइसेस में. सर एक क्वेश्चन है. हम लोग सर, क्योंकि मतलब उस पर्सन का बर्थ तो हुआ नहीं था, तो क्या हम उसके पेरेंट्स से ले सकते हैं कि मतलब सन और मून को देख के हम कुछ बोल सके कि मून से पहले कुछ नहीं है या सन से पहले केतु है? या नहीं, वो भी कर सकते. लाइक इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट अबाउट फादर एंड फैमिली, सो ऑब्वियसली यू कैन यूज ऑल दीज एलिमेंट्स. वो सब आप यूज कर सकते हैं. जी सर. ठीक है, मून है, मून से पहले कुछ नहीं, मून के बाद है. ऑब्वियस बात है कि मदर मून, तो उनकी फैमिली के बारे में आप बता सकते हो आप.
तो जैसे उन्होंने बोला कि फैमिली में ट्रबल्स थे, तो सर सैटर्न भी अगर पहले आया तो सैटर्न केतु है, एंड तभी सन भी अगर तो सेम ऐसे ही फैमिली ऑफ मदर या मदर के लिए खुद, है ना, पहले से भी कोई सपोर्ट नहीं है. बिफोर मून देयर इज नो प्लैनेट, बट आफ्टर मून देयर इज अ केतु. यस सर, और पहले मार्स और राहु है सर. पहले मार्स राहु है, वो भी मतलब बहुत बहुत ट्रबल के साथ उसकी मदर की जर्नी लाइफ में रही है. ठीक है, उसके बाद वो केतु से मिलना है उसको, वहां भी दिक्कत. तो टिल इट क्रॉस दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मर्क्यूरी सन सैटर्न, तब तक वो दिक्कतें हैं उसमें. द सेम थिंग ही इज यूजिंग फॉर द फादर थिंग. But the new understanding which we have seen in this chart is we can even predict before birth also. Okay, by moving sun in backward. ठीक है. Now एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. आप ऐसे चार्ट्स आप लोग देखें जो इसमें जुपिटर रेट्रोग्रेड हो, ठीक है, और थोड़ा उसके बर्थ से पहले की थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कलेक्ट 2-3 चार्ट्स, थोड़ा सोचें इसके बारे में कि वहां रेट्रोग्रेड अगर पहले से ही है तो क्या, तो तब भी आप पीछे की उसमें से लेंगे हाउसेस, ये क्या करेंगे उसमें. ठीक है, थोड़ा इस पे काम करते हैं. बट फिलहाल अभी स्टार्ट पे आते हैं. सो सभी का ध्यान इसी लाइन पे क्यों गया कि उसके जन्म से 3 साल पहले ही कुछ ट्रबल हुआ है. कोई कुछ और ट्रबल के बारे में नहीं लिखा चार्ट में. सर ओल्ड हाउस का भी था क्वेश्चन. फादर के लिए तो लिखा ही हुआ है plenty of troubles, correct? That word is used, so obviously this combination we can apply for the father also. Okay, but what about native के लिए भी यहाँ पर problems हैं. So 24 to 26 it's mentioned here. पेरेंट्स लिखा है, इसका मतलब मदर फादर दोनों के लिए. दोनों ही हो गए. ठीक है. Sir, in this chart it is written the good period begins 20 to 21. So that means he's taking progression over Sun and Venus. The Jupiter's progression over Sun and Venus. Sun and Venus. And what about 48? 48, I think, sir, we already discussed the 5th round of Jupiter when it comes over Leo. Then there is a combination of Mars, Moon, and then Ketu ahead. Ketu ahead. And there is a one more shortcut rule for this. That's why I covered that thing in the PPT. Okay, but किसी का ध्यान गया नहीं उस पे. ये देखें आप. When Rahu combine with any planet, okay, start giving pains and trouble at the age between 36 to 48. ठीक, एक ये rule. There is another rule for it that says if any planet is connected with Rahu Ketu axis, okay, Rahu Ketu axis, okay, then it will give trouble, or we can say trouble will start from 48 years. ठीक है, इसका मतलब क्या हो. राहु केतु का एक्सिस का मतलब क्या है. So the midway of Rahu and Ketu, that is the Leo sign, I think. राहु केतु एक्सिस का मतलब ये हो गया मिडवे, ऐसा. According to my knowledge, I am not sure about this, but I think so. That could be the reason. I think in Rahu Ketu axis means in conjunct with either Rahu or Ketu. I think 5 and 11 number signs are the midpoints of Rahu and Ketu. नहीं राहु केतु एक्सेस मतलब या तो राहु के साथ या केतु के साथ. Yeah, if you are saying specifically axis, then Taurus or Scorpio. So I'm only mentioning midpoint. I'm not saying axis. Yeah. So the 4th house from Rahu and 4th house from Ketu is the midway, I think. Midway. वो midway is correct. Okay. But जहाँ हम बोलेंगे अब राहु केतु एक्सिस, ठीक है, तो सर जो प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में आ रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड राहु केतु एक्सिस. जो उनके बीच में हाउसेस में आ रहे होंगे. सर यहाँ मार्स राहु केतु की धुरी के बीच में जो प्लेनेट आए वो राहु केतु के एक्सिस में कहलाएंगे. ठीक है, ठीक है, ठीक है. Sir, here Mars and Moon are not in the Rahu Ketu axis. Rest of the planets are.
Rahu is moving towards Aries sign. Ketu is moving towards साइंस वो भी रहेंगे। the Libra sign. यहाँ मार्स ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है सर, क्योंकि 159 पर एक्सेस पे भी मार्स का एज ए लगन लॉर्ड जो है, सपोज अगर हम उसको भी कंसिडर करते हैं तो एस्पेक्ट भी करता है 9 पे। वो मार्स जो है इनडायरेक्टली वे में भी काफी ट्रबल दे रहा है। देखिए मैं आप थोड़ा आपको ना स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, ठीक है? बहुत थोड़ा सा हौच-पौच हो गया लग रहा है, बट ऑलमोस्ट सब आप पॉइंट्स आप लोग समझ पा रहे हैं इसमें, ठीक है? रविंदर जी। जी सर। हाँ, कुछ समझ में आया चार्ट में इसमें? हाँ सर, जो आपने बताया है वो समझ में आ गया सर। ठीक है, तो सर हमको एक चीज समझ में नहीं आई जी। सर। रूल ये था ना कि वीनस से क्रॉस होगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, तो वो क्यों नहीं आई इनको? तो वीनस से कहाँ प्रॉस्पेरिटी अभी स्टार्ट हुई इनकी? अभी तो वीनस में टच ही नहीं हुआ ना इनका। पर नहीं, जैसे जन्म के पहले ना, तो वीनस से तो होके आए होंगे ना जुपिटर। हाँ, नहीं अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी इसको स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? द फर्स्ट थिंग इज देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर, Saturn, Mercury, Sun. Okay, aspected by Mars. So can we include Mars also here? Okay, that will be the combination now. Am I correct? कोई दिक्कत किसी को? No sir. ठीक है, okay. So now when we say Rahu Ketu axis, Rahu is moving towards the Jupiter. Okay, Ketu is moving towards the Moon. Okay, so यहाँ से these all planets are in the same axis of Rahu Ketu within Rahu Ketu. Correct? Mars look outside, okay, but in this combination, Mars, we have to conclude with this combination only. Okay, so only Moon is out of this Rahu Ketu axis. ये थ्योरी समझ में आई? क्या हुआ इसमें भी? Sir, because Mars is aspecting. Mars you're is considering it within the axis. Yeah, so because what is our combination rule? 159 and 7. Yeah. Okay, so 159 में तो हमारा ये आ ही रहा है ना, जुपिटर, मर्क्यूरी, सैटर्न आ गया, Mars is aspecting. So these all things you can write down in one combination. So now the rule says if planets are in Rahu Ketu axis, okay, within Rahu Ketu axis, then problem or the effect of this Rahu Ketu axis is starting from 48th year or after 48th year. Okay, so in any chart, if you see all planets, especially in combinations or whatever it is, if they are placed within Rahu Ketu axis, problem is bound to start from the 48th year. Okay, so now that word plenty of troubles, which is given for the father, and that is also before birth. That is also before birth. Okay, so from 48th year is applicable for this native. For this native, when this native reach to 48th year, वो trouble वहां से start होना वो तो ठीक है, but due to this Rahu Ketu axis, उनके father को भी trouble होगा उनके birth से पहले भी. This is what that statement says. If they says 3 years before, maybe it's 3 years or 4 years, वो trouble रहेगा वो. Because Venus is also coming in between this Rahu Ketu axis. The problem is we are seeing this Mars combination with Moon and Aquarius, correct? That is also correct. But the problem है अभी यहाँ क्या कि Moon तो already बाहर जा चुका, बचा क्या इसमें से? ये सारे ग्रह तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गए राहु केतु एक्सिस में. श्रीमान नारायण जी. Yes sir. समझ में आया? Sure. Okay. सर फादर का कैसे बोला आपने? फादर को राहु केतु एक्सिस से कैसे इम्पैक्ट होगा वो नहीं समझ में आया.
सिर्फ फादर नहीं, यहाँ पर जो भी कारक तत्व होंगे सभी होंगे इम्पैक्ट। वो उस बुक में सिर्फ फादर के लिए मेंशन करा गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, फादर फादर के लिए इसमें ऐसा है कि फादर सन सैटर्न, ओके, एंड सन आफ्टर दिस, इसके बाद नेक्स्ट उसमें कौन है, वीनस। हाउ इज सन एंड वीनस इन द रिलेशनशिप? enemies. No, enemies. एनिमीज है ना। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ ये देखना है कि बिफोर एंड आफ्टर क्या कॉम्बिनेशंस में जुड़ते हैं सन के साथ, है ना। उसके बाद आप ये राहु केतु एक्सेस वाला इसमें रूल लगेगा, इसके बेसिस पे वो प्रिडिक्शन उसमें लिखा गया है। So ठीक है, please can you explain this Rahu Ketu axis again? मैं दोबारा बताता हूँ आपको, अभी फिलहाल आप ये समझो, मैं इसको हिंदी में एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। राहु इन टॉरस, केतु इन Scorpio. Okay, so when we say Rahu Ketu axis means whatever planet is placed in between this Taurus and Scorpio. Clear? जो भी ग्रह है टॉरस, जबकि वृषभ राशि और स्कॉर्पियो के बीच में आने वाले हैं, वो सब राहु केतु एक्सेस में आएंगे। ठीक है यहाँ तक? Yes sir. अब अगर हम लेते हैं मार्स और मून को, वो गलत है। या मार्स मून नहीं, यहाँ पर आएंगे जुपिटर, वीनस, सन, सैटर्न, मर्क्यूरी एंड सन। ये सारे ग्रह हैं राहु केतु के एक्सेस में। क्लियर है जी? Yes sir. ठीक है। अब वो सब एक्सेस बोलो या कुछ और नाम दो, मे भी हो सकता है सबके कुछ अलग अलग हो, बट कहने का मतलब ये है कि ये राहु केतु के चपेट में तो है अंदर सारे। ठीक है, जैसा हम कालसर्प प्रयोग बनाते हैं वैसा कुछ समझो आप। बट अभी क्या है कि यहाँ पर मार्स और मून बाहर है। ठीक है, मून अंदर होता और ट्रबल होता, चलो बाहर है कोई दिक्कत नहीं, बट व्हाट अबाउट दिस मार्स इज एक्सपेक्टिंग। ये राहु केतु की जो मतलब जो प्रोग्रेशन कह लो या गिनती कह लो, ये हमेशा उल्टा ही लेना है ना सर, वक्री की वजह से। तो वक्री रहेगा ना ये तो। हाँ हाँ, तो वक्री ही रहना है। मेरा ये था सर, कभी मतलब नाड़ी में अलग से कोई रूल ना हो सर। तो वैदिक में भी ऐसे ही होता है ना। अब हाँ, दिक्कत ये वैदिक का कि तो पता है सर, मुझे नाड़ी हाँ, का ही था सर। नहीं इसमें भी सेम ही रहेगा। जी 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 सर। ठीक है, नाउ दिस मार्स is creating combination with this particular thing, Saturn, Mercury, Sun, इसके साथ कॉम्बिनेशन में है, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब उसमें जो लिखा गया है कि नेटिव के बर्थ से पहले फादर को ट्रबल था, ये था तो हाँ बिजनेस में रहा होगा। बिजनेस में वो डिपेंड करता है उसमें क्या है, बट अभी ट्रबल वर्ड को जो आपके इसमें पकड़ा। ठीक है, अब ये समझो कि नेटिव के बर्थ से पहले पहले तक ही ये सब इसी के अंदर थे। नेटिव के बर्थ होती जुपिटर तो मूव करना शुरू कर देगा, वो तो राहु केतु एक्सिस से बाहर आ जाएगा ना जुपिटर। तो जब तक राहु केतु एक्सिस से जुपिटर बाहर नहीं आएगा, ऊपर ट्रबल रहेगा। अब जुपिटर अगर यहां हो 3 साल पहले तक, किसमें, कैप्रिकॉर्न में या एक्वेरियस में, ठीक है, तो उसके बाद देख रहे हैं 1 2 3 जुपिटर के आने तक देयर इज नो प्लैनेट्स इन दिस। ओके, तो सिवियरिटी और बढ़ेगी। रूल ये बोलता है, हमने लास्ट सेशन में देखा भी था, जितने हाउसेस आगे खाली रहेंगे उतना वो ट्रबल एक्सटेंड होता रहेगा। यही हमने देखा था। ठीक है, Yes sir. अगर जुपिटर बर्थ से पहले, अगर वो 3 हाउस पीछे, हम 3 साल की अगर हम बात करते हैं, चलो हम ये भी कहते हैं कि जुपिटर का एग्जैक्ट डिग्री है और 3 साल पहले वो एक्वेरियस में रहा होगा वो, या कैप्रिकॉर्न में रहा होगा, तो उसके बाद की तो सारे हाउसेस खाली है। ठीक है, और वो मिलना किसको, उसको बाद में राहु से मिलना जाके। ठीक है, और वहां पर जिस कारक तत्व की बात हो रही है दैट इज फादर, तो इसलिए उसमें उसको ट्रबल जुड़ा गया है। अब ध्यान रखना कि उन्होंने ये नहीं बोला कि 3 साल से पहले भी ट्रबल रहा होगा। क्या उसमें प्रोडिक्शन में ये लिखा है कि 3 साल पहले तक ट्रबल था, कि 3 साल से पहले भी ट्रबल रहा होगा? Only 3 years is mentioned. Only 3 years is mentioned. Why only 3 years? Why not more than 3 years? So maybe because of Venus, I think. वीनस है तो वीनस उसको खत्म। अभी ट्रबल यहाँ पर सैटर्न, मर्क्यूरी, सन उससे नहीं है। ठीक है, वीनस जब तक था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। ट्रबल स्टार्ट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस वन, एक्वेरियस।
Because when Jupiter is in Aquarius, now try to understand this, शिवानी जी, रविंदर जी, जब जुपिटर एक्वेरियस में रहेगा, ठीक है, तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन हियर? यहाँ क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? कॉम्बिनेशन बनेगा मून, हाँ, जुपिटर मार्स मून, जुपिटर मार्स मून, नॉट जुपिटर, जुपिटर तो हम प्रोग्रेशन ले रहे हैं ना, तो ओनली मार्स एंड मून, ओनली मार्स एंड मून। ओके, तो मार्स मून कॉम्बिनेशन कैसा है? इज इट गुड और बैड? अच्छा है सर। It's a bad combination. Not good. It's a Not bad good. combination. Shriman Harangi, not good. Okay, Not Timing good. is okay, ना not sir? good. Nadi के according. नाड़ी के Now it depends. Now it depends for which particular purpose you are doing the assessment. Okay. But जब हम बोलते हैं कि यहाँ पर bad है, तो obviously either it in terms of health or in terms of profession. ठीक है, क्योंकि सैटर्न भी है सन के साथ, तो वो जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं उनके वो काम धंधे को लेके बोला गया है। ठीक है, तो जब तक वो वीनस के साथ था तब तक तो कोई ट्रबल नहीं था, बट जैसे ही वो वीनस से बाहर गया, दैट इज मेकिंग कॉम्बिनेशन विद दीज टू प्लैनेट्स। ओके, डिस्पोजिटर इज व्हाट? सैटर्न। सैटर्न कर्म कारक ही रहा ना। So before 3 years of his birth, Saturn will be with Ketu. हम जुपिटर को मूव कर रहे हैं। ये Saturn will be with Ketu before 3 years. कैसे होगा बिफोर 3 इयर्स सैटर्न? वो तो हम बता नहीं सकते ना। सैटर्न स्टेज फॉर 30 इयर्स। अब वो कितने डिग्री पे है, क्या है, इसका तो कुछ आइडिया नहीं है। माइनर, हाँ, माइनर तो बोल सकते हैं, इसलिए सैटर्न को भी जरूरत नहीं है, जुपिटर से काम हो रहा है बाय सैटर्न। ओके, सैटर्न भी आप लोगों को चलो केतु में आ गया, तब भी कौन सा अच्छा हो गया उसमें? तब भी ट्रबल ही है। सर जुपिटर जो है ना सर, वो सन के 5 घर आ गए हैं। तो वो अभी स्टार्ट में जुपिटर, शनि और बुध रेट्रो है सर। हाँ सर, मार्स भी देखो ना। नहीं, वो रेट्रोग्रेशन तो ठीक है, अभी उसके बर्थ से पहले की चर्चा करते हैं ना, रेट्रोग्रेशन पे तो आएंगे अभी। ठीक है, तो अभी सिंपल आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 3 साल ही क्यों बोला गया उसमें, 3 साल से पहले क्यों नहीं था ट्रबल? गौतम जी, This could be the reason because Venus is the karaka for money, I think, in Nadi. yes. So at that time, father had a lot of money, or the financial position might have been good. So as Jupiter came in Aquarius, I think the problem started because But Rahu when it was there. with Venus, but when it Then was there with was no Venus, तो ये problem. राहु कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा क्या सर 2 6 10 का? The Rahu will move. No? हाँ, अगर आप Jupiter Aquarius में लेंगे, then Rahu will also move. No. I'm saying before 3 years. Before 3 When years. it was with Venus, yeah. If you make then a chart for Aquarius sign, so Rahu will also move. So I think so. नहीं, ठीक है, It राहु can be interpreted like that. हाँ, नहीं गौतम जी, वो ठीक है। तो हम ना हर बार हम क्या करेंगे कि हर बार हर ग्रह को मूव करने की इसमें जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, जब तक आपके पास वो डिग्रीज नहीं है, ठीक, इतना समझ लो आप। ठीक है, तो हम सिर्फ अभी प्रोग्रेशन लेंगे जुपिटर सैटर्न का, दैट्स इट, नो अदर प्रोग्रेशन इज इंक्लूडेड। विनायक सर, देयर वाज वन मोर रूल, सॉरी, अगर जुपिटर पाइसेस में हम लोग लेते हैं और तो वीनस 11th में हो जाएगा। तो ये रूल था कि जब भी वीनस जुपिटर से 11th में होगा, 3rd में होगा, तब वो इतना ट्रबलसम नहीं होगा। नहीं होगा वो, नहीं 11th, हाँ 11th में होगा, ठीक है, वो 11th में हो सपोर्टिव जाएगा ना होगा, सर? सपोर्टिव सपोर्टिव होगा, yes, So then it will be basically, supportive, yeah. so I think the author concludes like this, that we don't need to move any planet. He's just taking Jupiter into consideration because Jupiter is the Jiva Karaka, I think so. So 3 houses behind, before Venus, there was no problem. When he crosses Venus, the problem started. So we can interpret like this. No, we can interpret like this, but I will clarify some points. Okay, अभी होल सोल इस चार्ट में सिर्फ आप जुपिटर सैटर्न ही यूज करें, पहला पॉइंट। दूसरा, नो नीड टू मूव अदर प्लैनेट्स, क्योंकि देयर आर सम रूल्स। इसमें आपको बोला, अभी शायद मैंने कुछ टाइम पहले ही बोला कि बाकी प्लैनेट्स मूव तभी करेंगे जब सैटर्न मूव करेगा एक बार। अनटिल सैटर्न जब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, बाकी ग्रह पोजीशन नहीं करेंगे चेंज। ठीक है, तो बर्थ से पहले सैटर्न चेंज किया नहीं किया, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना हमारे पास डिग्री है और ना उसने
किया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर प्रोग्रेशन, नॉट माइनर। जब मेजर प्रोग्रेशन में सैटर्न एक साइकिल पूरा करता है तब बाकी के प्लैनेट्स प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं, अदर देन जुपिटर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ 3-4 years तक you don't need to move any planets। तो शिवानी जी जो बता रही हैं कि वीनस राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, दैट इज करेक्ट, वो बनाएगा, वो तो वहां पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वो राहु के साथ कॉम्बिनेशन में आता भी है तो राहु इज नॉट हार्मफुल, राहु इज एक्सपेंशन, वो बृहद का कारक है ना। तो मनी, इफ यू टॉक अबाउट मनी, plenty of money। Because both are friends, Rahu and Venus, and Rahu is राहु एंड वीनस फ्रेंडली, राहु wider जहां पर जुड़ेगा, जिस भी ग्रह कारक उसका जुड़ता है ना, वो उसको वो बड़े expand. तो उसमें देता है, नॉट एक्सपेक्ट, वो बृहद रूप में देता है उसको। ठीक है, एम्पलीफाई करता है सर। हाँ, ह्यूज मनी, ह्यूज स्टेटस सन के साथ। ठीक है शिवानी जी, सो हाँ जी। वो ओरिजिनल कॉम्बिनेशन वीनस राहु वो ठीक है आपका। ठीक है, सो इसको इस तरह के चार्ट्स को इंटरप्रेट हमें कैसे करना है। आप सबसे पहले जब भी चार्ट आपके पास आता है, ठीक है, तो डायरेक्टली पहले आप ये देखो कि हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन राहु केतु एक्सेस। इफ मेजोरिटी प्लैनेट्स आर इन राहु केतु एक्सेस, तो आप उनको पहला प्रेडिक्शन आप बोल सकते हैं कि ठीक है, आफ्टर 48th ईयर यू विल स्टार्ट सीइंग ट्रबल्स इन योर। ठीक है, ये नाड़ी का डायरेक्ट रूल 48 ईयर का। दूसरा, नाउ ऋषि इज डूइंग प्रेडिक्शन की उसके बर्थ से पहले, बर्थ के पहले कि आप जुपिटर को एक एक हाउस आप मूव करते चले, सिंपल। ठीक है, जहां से आपको दिखता है कि यहाँ से कॉम्बिनेशन खत्म हो रहा है, यहाँ से एक नया कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ट्रबलसम। और एक्वेरियस, स्पाइसेस एंड एरीज, ऑल 3 houses are empty, and after that it is meeting with Rahu. So till it passes Rahu और इवन मार्स ऑल्सो, तब तक वो ट्रबल रहने वाला है, क्योंकि जब वो मार्स से भी मिलेगा तब भी तो मून के साथ ही कॉम्बिनेशन बनना है। And again, when Jupiter reaches to Mars after birth also, it is making combination with Mars, Mercury, Sun, Saturn। अगेन फादर से कोई सिग्निफिकेंट इवेंट होना है, तो रिलीफ कब मिलने वाला है? क्वेश्चन आ रहा है, रिलीफ कब मिलेगा फादर को यहाँ से? Jupiter in Cancer। Jupiter when comes in Cancer, I think। कैंसर में भी मिल सकता है। ठीक है, कैंसर में भी वो केतु के साथ जाएगा वहां पर वो। ठीक है, बट स्टिल वीनस इज एस्पेक्टिंग। Okay, Rahu is in 11th house. It's in supportive, we can say, but it will not participate directly in combination. But yes, impact of Rahu is there. In Leo also, there is some saving factor, I think. Is going to aspect Mercury and Sun, Saturn combination. Yes. तो ऐसे आपको इसमें कैलकुलेट करना है ये। तो आपको एक आप इम्पोर्टेंट चीज आपको समझ में आई होगी कि यू कैन यूज backward rotation also of planets, and you can even predict before birth। जब ये when it will be in Leo, then do we have to see exchange also? Exchange, imaginary exchange? लियो में आएगा ना, देन सन के साइन में आ गया, और सन इज इन द साइन ऑफ जुपिटर। ले सकते हैं, अभी इमेजिनरी एक्सचेंज में भी डिस्कशन करते हैं, रुकिए, इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं लोगों के जो मैंने ग्रुप में देखे हैं। Sir, I have one query here, if you don't mind. Can I ask? Yes, yes. So if let's say Jupiter comes in his 5th round over Leo, so we will move Jupiter in Leo. Is the simple rule like this? Moving Leo, moving Jupiter in Leo means you're talking about what? The 5th round. Let's say 5th round starts. Okay, ठीक है। हाँ, तो जुपिटर को 5th में डालेंगे। But in that case, the natal Jupiter is placed in Aries. Yes. Are we going to count this combination that natal Jupiter is making some combination with progression Jupiter? No, no. इसमें हम क्या करेंगे? I will
you can make it more simple. In progression, when especially in fifth round of progression, Jupiter reached to Leo, correct? So you create new chart where you place Jupiter in Leo only. No need to place any Jupiter in Aries. Yes, sir. Okay, so वो मेजर प्रोग्रेशन जो आपका बना उसी से आपका चार्ट बने. सो वॉट एवर कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे वो कॉम्बिनेशंस अब आप लियो से आप देखें चलेगा. So we are going to forget about the natal Jupiter that it is placed in Aries. हाँ, उसकी जरूरत नहीं है फिर लेने की. जरूरत नहीं है. ठीक है. किसी को आपने बर्थ से पहले की बात याद है? Excuse me, sir. हाँ. Sir, here this if we will go step by step, like 20, 21 years, 24 to 28 years, 27th year, 47, 48 year, like that. Why is such thing has been predicted? Like 20 to 21 is good days. Why? If you are explaining these things step by step, we will understand why these are going to happen. 21 to 22 कहाँ लिखा है? I mean which? Sir, it is written there. It's 20 to 21. 2021 What period starts? हाँ, तो good period. I will also teach that thing. अभी हम पहले ट्रबल सन उसका तो खत्म कर लें टॉपिक है. क्योंकि so ट्रबल वाला अभी उन्होंने लिखा, अभी ट्रबल उन्होंने लिखा फादर के लिए बिफोर बर्थ. अभी वो समझ में आया आपको, वो हमने किया 3 साल पहले का, उतना आ गया, वो भी आ जाएगा. That is purely progression, nothing in it. Okay, purely progression. ठीक है, तो good time आएगा. Obviously something connected with Venus or these things are there. Combinations पढ़ेंगे, फिर दोबारा यही चार्ट डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, तो करेंगे उसको भी. आप ही चार्ट को नोट करके रख लो, टिक मार के. We'll come back to this chart again for other combinations also. अब अजय जी समझ में आया चार्ट? यस सर. ठीक है. स्वास्तिका जी? यस सर. ओके. मृदुला जी ऑन एंड यस सर. प्रीति सैनी, रविंद्र अग्रवाल जी सर. शिवानी जी, हर्ष मोदी? यस सर. ठीक है. अब किसी को अपने जन्म से पहले की बातें याद हो तो वो भी चार्ट में अपना चेक कर लेंगे एक बार. सर हमारे कजिन है ना, उनको अपना पूर्व जन्म याद है. आपके कजन? यस सर, हमारे कजिन है, उनको पूर्व जन्म याद है. तो इसमें आपको पूर्व जन्म जानने की जरूरत थोड़ी है. इसमें तो आप खाली ये देखो कि आपके बर्थ से पहले अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए क्या हुआ था आपके साथ. बट वो जो कजन है आपके ना, उनका भी आप चार्ट लें. इसमें हम आगे ये भी पढ़ेंगे एक चार्ट कि पास्ट लाइफ की चीजें भी कैसे करा जाए. उसमें भी एक नया चार्ट बनेगा. इसी हमारे चार्ट से एक नया चार्ट डेवलप होता है जो पास्ट लाइफ चार्ट. विनायक जी एक सजेशन दो. हाँ विनायक जी, इस चीज में सबसे अच्छा ये होता है अपने बच्चों का हॉरोस्कोप देखना, क्योंकि हमारे बच्चों का जन्म के पहले हमारे लाइफ में क्या हुआ तो हम जानते हैं ना. जानते हैं, करेक्ट.